اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ دنیا کے پرانے کانفلکٹس میں سے ایک ہے۔ یہ کانفلکٹ سالوں ہونے کے بجائے اور بڑھتا جا رہا ہے، جس وجہ سے تباہی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ڈیتھس ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کانفلکٹ کیسے شروع ہوا اور اس کی ہسٹری کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجودہ دور میں جاری خون ریز کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس جگہ اور اس کے جڑے لوگوں کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگرچہ موجودہ کانفلکٹ کی جڑیں 20th سینچری میں ہیں، لیکن پرانی تاریخ، پرانی ہسٹری کے حوالے سے یہ پوتر جگہ مذہبی اہمیت اور خاصیت رکھتی ہے۔ اسرائیل آج ویسٹ ایشیا کا ایک چھوٹا ملک ہے جس کا سائز انڈیا کے ناردرن اسٹیٹس جتنا ہے۔ اسرائیل کے بارڈرز کی بات کریں تو اس کے ویسٹ کی طرف میڈیٹرینین سی ہے، ساؤتھ کی طرف ایجپٹ، ایسٹ کی طرف جارڈن اور سیریا، نارتھ کی طرف لبنان ہے۔ اسرائیل یونیک اس لیے بھی ہے کیونکہ اسرائیل میں ایک ایسی جگہ ہے جو جیوز، کرسچنز اور مسلمز کے لیے مذہبی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ ایک مثالی ہسٹری ہے۔ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ پاپولیشن جیوز کی ہے، حالانکہ مسلمز اور کرسچنز کی پاپولیشن بہت کم ہے۔ اسرائیل کی اینسنٹ ہسٹری کے بارے میں جو کچھ جانا جاتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہیبرو بائبل سے لیا گیا ہے۔ اسرائیل کو ایک بائبلیکل فگر پروفٹ ابراہیم پیس بی اپان ہم سے ٹریس کیا جاتا ہے، جن کو فادر آف جودائزم سمجھا جاتا ہے، اپنے بیٹے اسحاق کے ذریعے اور اسلام کے پیٹریارک اسماعیل کے ذریعے، پیس بی اپان دیم۔ ابراہیم کے بیٹے کنعان میں سیٹل ہونے سے پہلے تقریباً سینکڑوں سال مصریوں کی غلامی میں رہے۔ تقریباً 1000 BCE اس علاقے کی حکومت پروفٹ ڈیوڈ پیس بی اپان ہم نے کری۔ اس کے بیٹے کنگ سولومن نے پیس بی اپان ہم 957 BCE کے قریب اینشنٹ جیروزلم میں فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا۔ تقریباً 931 BCE میں یہ ریجن 2 کنگڈمز میں ڈیوائیڈ ہو گیا، یعنی نارتھ کی طرف اسرائیل اور ساؤتھ کی طرف جودا۔ 722 BCE میں کنگڈم آف اسرائیل پر اسرینینز نے حملہ کر دیا اور اسے ڈسٹروائے کر دیا۔ 6th سینچری BCE میں بیبلونین نے جیروزلم کو کنکیور کیا، ان کے کنٹرول میں جودا بھی آ گیا، فرسٹ ٹیمپل کو توڑا گیا اور جیوز کو بابل سے نکال دیا گیا۔ 538 BCE میں بیبلونین کو سائرس نے قبضہ کر لیا، جو کہ ایکمینٹ ایمپائر کا بادشاہ تھا، اور اس نے جیوز کو واپس جودا جانے کی اجازت دی، جہاں انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا۔ 70 عیسوی میں رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل کو توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل سے گولڈ اور باقی مٹیریل چرایا گیا اور رومن کولوزیم بنایا گیا۔ 132 to 136 عیسوی میں بار کھوکبا ریولٹ کے بعد رومن ایمپیرر ہیڈرین نے تمام جیوز کو جیروزلم سے نکال دیا، جو ٹائم ٹو ٹائم اینٹی رومن ریولٹس کا سینٹر بنے رہا تھا۔ ہیڈرین نے جیوز پریزنس کو ختم کر کے جودا کا نام سیریا فلسطینیا رکھ دیا۔ کئی نیکسٹ سینچریز تک اسرائیل ریجن بہت ساری گروپس جیسے پرشینز، رومنز، گریکس، عربز، سیلجوک ترکس، کروزیڈرز، ایجپشینز، اوٹومن ایٹسٹرا نے حکومت کری۔ 1517 to 1917 تک اوٹومن ایمپائر نے ویسٹ ایشیا انکلوڈنگ اسرائیل پر حکومت کری۔ 19th سینچری میں فلسطین اسرائیل کے علاقے میں پاپولیشن آلموسٹ مسلمز 87%، کرسچنز 10% اور جیوش 3% تھی۔ تینوں کمیونٹیز امن سے رہے۔ اب پھر سے کانفلکٹ تب ہونے لگا جب آسٹرو ہنگیرین جیوش جورنلسٹ تھیوڈر ہیزل نے ایک آئیڈیا پروپوگیٹ کیا کہ فلسطین جیوز کے لیے ہے اور فلسطین جیوز کے لیے ہوم لینڈ ہونا چاہیے۔ اس آئیڈیا کو زیونزم کہا گیا۔ اس آئیڈیا سے بہت جیوش انفلوئنس ہو گئے یورپ میں، کیونکہ یہ باغ کے وہیں ٹھہرے تھے جہاں انہیں بہت مشکلات اور ڈسکرمنیشنز فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران 1917 میں برٹش گورنمنٹ نے جیوز کی مدد لینے کے لیے بیلفور ڈکلریشن اناؤنس کیا، جس میں پرومس کیا گیا کہ فلسطین
ज्यूज के लिए नेशनल होम कायम किया जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम थी क्योंकि ब्रिटेन ने सेक्रेटली फ्रांस के साथ डील करी थी कि जंग के बाद अरब टेरिटरीज डिवाइड होने चाहिए और फ़लस्तीन ब्रिटिश के कब्जे में होगा। ब्रिटेन ने 1915 में मक्का के हुक्मरान शरीफ हुसैन से ये झूठा वादा किया था कि अगर ऑटोमन के खिलाफ अरब बगावत की क़ियादत करे तो फ़लस्तीन रीजन पर अरब की हुकूमत होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश ने फ़लस्तीन में एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करी, ये बोल के कि जब तक फ़लस्तीन खुद हुकूमत के लिए तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ कॉलोनी रहेगी। इसको मैंडेटरी फ़लस्तीन कहा गया क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द लीग ऑफ नेशन मैंडेट था। बहुत सारे ज्यूज यूरोप से आके फ़लस्तीन घर बसाने आते थे। 1920 एंड 1930 के दरमियान फ़लस्तीन में ज्यूज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई क्योंकि उनको फैसिलिटेट ब्रिटेन कर रहा था बेलफोर डिक्लेरेशन को निभाने के लिए, क्योंकि ज्यूज ने वार में मदद करी थी। इस दौरान ज्यूज और अरब कम्युनिटीज़ में टेंशन्स आपस में बढ़ गए। 1936 में फ़लस्तीनियन अरब्स ने ब्रिटेन के खिलाफ बगावत करी, लेकिन ब्रिटिश ने इस बगावत को जीविश मिलिशियाज की हेल्प से सप्रेस कर दिया। आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश ने एक वाइट पेपर इशू किया जिसमें कहा गया था कि ज्यूज अब फ़लस्तीन में इमिग्रेट नहीं हो सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप से बहुत सारे ज्यूज फरार हो गए, उनको इलीगली फ़लस्तीन लाया गया क्योंकि वाइट पेपर में इमिग्रेशन लिमिट बोला गया था। जब टेंशन्स बढ़ गए तो 1947 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने का वोट दिया। एक हिस्सा फ़लस्तीनियन के लिए और दूसरा हिस्सा ज्यूश के लिए। इस प्लान को अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया। मई 1948 में इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट करार दिया गया जिसके प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन थे। इस डिक्लेरेशन के बाद अरबों और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई। 1949 में सीज फायर अनाउंस किया गया, वेस्ट बैंक जॉर्डन को दिया गया और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट का हिस्सा बन गया। जितना हिस्सा यूएन इजराइल को देना चाहता था इससे कई ज़्यादा इजराइल के कंट्रोल में आ गया। ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के कंट्रोल में था। 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियंस फरार होकर नेबरिंग अरब कंट्रीज़ में रिफ्यूजी बन गए। 1956 में मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज कैनाल से ट्रेड इजराइल के लिए बंद कर दिया क्योंकि सुएज कैनाल इजिप्ट की ज़मीन में था। इजराइल के पास जंग के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसने इजिप्ट पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट से सुएज कैनाल को फिर से जारी किया गया। 1967 में 6 डेज वार शुरू हो गया जिसमें इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला का कंट्रोल हासिल किया। इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। 1973 में योम किपुर जंग हुआ जब सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। जैसे 2023 में हमास ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। 2 हफ्ते के बाद जंग यूएन ने स्टॉप कराई। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और PLO यानी फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इजेक्ट कर दिया। PLO 1964 में बनी थी फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए। इजराइल ने ज्यूइश सेटलमेंट्स बनाए उन एरियाज़ में जो फ़लस्तीनियन टेरिटरी थी, इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम। 1987 में फ़लस्तीनियन ने गाज़ा और वेस्ट बैंक के लिए बगावत करी क्योंकि इजराइल इन पर कब्जा कर रहा था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए और इसको द फर्स्ट फ़लस्तीनियन इंतफादा कहा गया, जिसका मतलब है शेकिंग ऑफ यानी हिलाना। 1993 में ये जंग रोकी गई ओस्लो पीस अकॉर्ड के दौरान और 1995 में दूसरी अकॉर्ड साइन हुई। इस टाइम के इजरायली PM यित्ज़हाक राबिन और लीडर ऑफ PLO
यासिर अराफात के दरमियान हुई। फ़लस्तीन को अथॉरिटी दी गई और कुछ इजराइल के इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1997 में इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। बदकिस्मती से फिर से टेंशन शुरू हो गए और अमन कायम नहीं रहा। ईयर 2000 में सेकेंड फ़लस्तीनियन इंतिफादा शुरू हो गया। वायलेंस तब ट्रिगर हो गई जब इजरायली पॉलिटिशियन एरियल शरोन मस्जिद अल अक्सा में आ गए। तशद्दुद के बाद सीज फायर करार दिया गया और आखिरकार इजराइल ने प्लान किया कि 2005 तक ज्यूइश सेटलमेंट्स को गाजा स्ट्रिप से हटा दिया जाएगा। 6 जून 1982 टू 5 जून 1985 तक ये जंग रही। दरअसल साउदर्न लेबनान में PLO ऑपरेट कर रहे थे। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में घुसकर PLO को जड़ से खत्म करने का सोचा था। ये इन्वेजन नाकाम रहा क्योंकि सीरिया ने 2005 तक लेबनान पर कब्जा किया हुआ था। ये कॉन्फ्लिक्ट जुलाई 2006 में स्टार्ट हुआ। ये जंग लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हुई। हिजबुल्लाह जो एक शिया सियासी जमात है, कुछ मंथ्स बाद UNA ने सीज फायर करार दिया और जंग को रोका गया। अब यहाँ से हमास की एंट्री हो गई। हमास एक सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है जिन्होंने 2006 में फ़लस्तीन में इलेक्शन जीत लिए थे। 2007 में हमास ने PLO को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिकल ग्रुप को डिफीट दे दी थी। हमास ने इजराइल के साथ 2008, 2012 और 2014 में खास तौर पर बड़ी लड़ाई लड़ी थी। गजा पर हमास का ही राज है। गजा के बॉर्डर से एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ इजिप्ट बॉर्डर टाइटली बंद है। वेस्ट बैंक अभी भी इजराइल के कब्जे में है। फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, सीरिया और लेबनान में रह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इजराइल, अगर फ़लस्तीनियन को घर आने दिया तो इजराइल को खतरा है एक ज्यूइश स्टेट बनने में, क्योंकि दुनिया में ज्यूइश स्टेट सिर्फ इजराइल ही है। इजराइल कहता है कि सारा जेरूसलम हमारी कैपिटल है। फ़लस्तीनियंस कहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम हमारे फ्यूचर फ़लस्तीन स्टेट की कैपिटल है। अगरचे इजराइल फ़लस्तीन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन UNA के 135 से ज्यादा मेंबर्स मानते हैं कि फ़लस्तीन इज अ स्टेट। बल्कि 1988 में इंडिया ने दुनिया में सबसे पहले फ़लस्तीन को एज ए स्टेट तस्लीम कर लिया था। 6 मई 2021 में वायलेंस तब हुई जब इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने शेख जारा, जो कि ईस्ट जेरूसलम में है, वहां की 6 फैमिलीज को घरों से बेदखल कर दिया। इस पर फ़लस्तीनियंस ने प्रोटेस्ट करी। अगले दिन इजरायली पुलिस मस्जिद अल अक्सा आई और दावा बोल दिया, फोर्सली मस्जिद अल अक्सा में घुस गए। चंद दिन बाद हमास और दीगर फ़लस्तीनियन ग्रुप्स ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट्स गिराए और इजराइल ने वापस जवाब दे दिया। जेरूसलम एक पुराना शहर है। इजराइल और फ़लस्तीन दोनों इस पर दावा करते हैं। इजराइल क्लेम करता है कि सारी अनडिवाइडेड सिटी उसकी कैपिटल है। फ़लस्तीन इसकी तरदीद करते हुए कहते हैं कि उनको राइट ऑफ फ्रीडम मिले। जेरूसलम शहर को मुकद्दस समझा जाता है, जहां 3 रिलीजस की इंपॉर्टेंस आती है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म। 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर करी थी। वेस्ट जेरूसलम इजराइल की कैपिटल और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन का हिस्सा बन गया। 1967 में 6 दिन जंग में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। UN ने रेजोल्यूशन पास किया कि इजराइल को मकबूजा जमीन जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है छोड़नी पड़ेगी। 1980 में नेसेट इजरायली पार्लियामेंट ने जेरूसलम लॉ मंजूर किया और डिक्लेयर किया कि जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनाइटेड इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, यानी जेरूसलम सारा का सारा कैपिटल है इजराइल का। बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने इसको इलीगल करार दिया
2017 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम किया था। जेरूसलम का पुराना शहर ईस्ट जेरूसलम है। इसके 4 क्वार्टर्स हैं, मुस्लिम्स, जीविश, क्रिश्चियंस और आर्मेनियन। माना जाता है कि फर्स्ट टेम्पल किंग सोलोमन पीस बी अपॉन हिम ने वहीं पे बनाया था। पुराने शहर में वेस्टर्न वॉल, जो कि सेकंड टेम्पल का पार्ट है, ये जगह जूज के लिए है जहां वो प्रे करते हैं। मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे अहम और मुकद्दस तरीन जगह मस्जिद अल अक्सा है, जो पुराने शहर में है। मुस्लिम्स का बिलीफ है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रात के सफर के दौरान इस जगह पहुंचाए गए थे, जो इसरा व मेराज के नाम से मशहूर वाक़या है। क्रिश्चियंस के लिए भी अहम है क्योंकि इसमें द चर्च ऑफ होली सेपल्कर है। इसमें क्रिश्चियंस के लिए 2 अहम जगह हैं। नंबर 1, वो जगह जहां से प्रॉफिट ईसा पीस बी अपॉन हिम को क्रॉस पर लटकाया गया था। नंबर 2, उनकी खाली कब्र की जगह। टेम्पल माउंट, जिससे अरबी में हरम अल शरीफ कहा जाता है, ज्यूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक पवित्र जगह है और ये भी ओल्ड सिटी में है। प्रेजेंट साइट में वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मॉस्क, डूम ऑफ रॉक और डूम ऑफ चेन शामिल हैं। करंटली इजराइल टेम्पल माउंट की सिक्योरिटी कंट्रोल करता है और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को जॉर्डेनियन वक्फ कंट्रोल करती है। सिर्फ मुस्लिम्स को मस्जिद अल अक्सा में प्रे करने की इजाजत है, जबकि ज्यूज वेस्टर्न वॉल पर प्रे करते हैं। जेरूसलम अमन का सेंटर है दोनों ग्रुप्स के दरमियान, क्योंकि मुकद्दस जगहें एक ही जमीन में है।